ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ بس میرا ایک ہی مقصد ہے، ہم اچھا امیج چھوڑیں، دوسری کمیونٹی پہ ہمارا اچھا امیج ہونا چاہیے، ہم بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی فیلڈ میں ڈیفینیٹ اگر آپ محنت کریں گے تو ضرور آپ کو عزت ملے گی اور ترقی ملے گی۔ تو میری گزارش یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ایڈمنسٹریشن میں لائیے، آئی ایس یا آئی پی ایس بنائیے، تو ڈیفینیٹ ان کا ہماری قوم کا فیوچر سدھار سکتے ہیں۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی جیسا ہمیں پہ بولے ہیں، ہم بھی ہمارے سی ایم صاحب سے ایک بار گزارش کریں گے کہ صاحب ہمارے جو این آر ایس بھائی ہیں تو بہت بڑے بڑے وہاں پر پوسٹ پر کام کر کے یہاں بھی ان سے ہم سروسز لیں گے تو ڈیفینیٹ ہماری اسٹیٹ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس کتاب میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کتاب کھول کے دیکھنے کے بعد۔ ایسی ہسٹوریکل کتابیں ہیں، ہم اسے محفوظ کر کے رکھنا چاہیے۔ اور میں بہت واسطے صاحب کو دل گہرا سے مبارکباد دیتا ہوں۔ میں بہت دیکھا سیاست والے بھی کتاب چھاپے تھے، وہ تو 2,000 کو بیچے جائیں، اس سے بھی بہت اچھی کتاب تو آپ کی نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ بہت۔ اور اس میں جو بھی آپ کے ساتھیاں اس کے اندر محنت کریں سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آج تاریخ کو جو موڑ دوڑ سجا، جو تاریخ مسلمانوں نے بنائی تھی وہ بہت صحیح تاریخ تھی۔ اور جب سے 10 سال سے تو کچھ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں جو اس ہندوستان کو سنوارے ہیں، تاج محل دینے والے جو لوگ ہیں، پورا انویسٹمنٹ یہاں کرنے والے، انگریز سے ہندوستان سے دولت لوٹ کر گئے، اور جتنے اس کے بعد مغل آئے جو بھی مسلم بادشاہ تھے یہاں کی دولت یہیں لگائے، ایک سے ایک طریقے سے ڈیولپمنٹ لانے میں بہت بڑا مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ اور مسلم کمیٹی بہت انٹرنیشنل کمیٹی ہے، مگر کچھ برسوں سے حالات سازگار نہیں چل رہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل سے گزر رہے ہیں، اور آنے والا وقت ضرور ہمارے ساتھ اچھا رہے گا۔ اور ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم پر توجہ دیں، اور وقت کی خرابی بہت ہوتی ہے، اور جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں یقیناً وہ بنانے والے سعودی عرب ہو یا کوئی دبئی ہو، ہمارے انڈین کے خاص طور سے ہمارے حیدرآباد کے لوگ رات دن محنت کرتے ہوئے کنٹری کی ترقی میں تعاون کیے، اور ریٹرن میں صرف کچھ پیسے ملے اور تعاون نہیں کیا، اس کا افسوس بھی ہے۔ اور میں تمام بھائیوں کا کیونکہ مجھے جلدی جانا تھا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اجازت بھی لینا چاہتا ہوں۔ یہی میں کچھ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میکزیمم آپ کے فورم کی طرف سے جو فورم آپ ہمیشہ رات میں کام کرتے ہیں، اور بھائی نے بتا کہ 140 کنٹریز میں آپ کا فورم ہے، تو ڈیفینیٹلی بس میں اردو ٹرسٹ مہاراشٹر کلب کہ میں آپ کے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے اس کلب کے ذریعے کچھ ایسے انٹلیکچوئل کو، ایسے لیکچر دینے والوں کو ہم انکریج کیجیے تاکہ ہماری قوم میں ایک ریولیوشن ہے، اور ہماری قوم کو سب سے اہم چیز تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور اس کتاب کی اناگریشن میں تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے آصف بھائی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ واقعی کتاب نہیں ہے، یہ ہماری پوری ہسٹری ہے، ہماری 1000 سال کی اس کے اندر ہسٹری ہے، جن میں ہم نے حکومت کی، جس طرح ہندوستان کو ترقی ملا۔ آج ہمارے ڈسٹرکٹ کی بات چلتی ہے، اس زمانے میں ڈسٹرکٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا ہندوستان کو، اور بہت سے ترقی کے موقع فراہم کیے گئے تھے۔ یہ آج ہماری آج کی تاریخ بتاتی ہے، آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور مبارکباد دیتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں سعودی عرب میں کامیاب ترین این آر آئیز کی فہرست اگر تیار کی جائے تو جو نام سر فہرست آئے گا، اس شخصیت کا تعلق ریاست تلنگانہ سے ہے، جو اہل تلنگانہ کے لیے قابل فخر بات ہے۔ میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں ان کا تعلق ضلع نظام آباد سے ہے۔ انہوں نے KVL انجینئرنگ کالج سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور سعودی عرب منتقل ہوئے۔ انہوں نے نامور کنسٹرکشن کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کیا، اور اب وہ ماسا اسپیشلائز کنسٹرکشن کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ آج یہ طوفانوں سے لڑتے ہوئے حیدرآباد پہنچے ہیں۔ واصف صاحب انہیں اپنے کرم فرماؤں میں شمار کرتے ہیں۔ میری مراد انجینئر محمد عبدالنعیم صاحب سے ہے۔ میں شیر سے ان کا استقبال کرنا چاہوں گا۔ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ کتاب انڈین آرکیٹیکچرل ہیریٹیج کے خالق
KN वासिफ साहब का तारुफ पेश करने के लिए मैं उनके पुराने रफ़ीक को जहमत देने जा रहा हूँ। इन दोनों ने 1980 में हैदराबाद की एक 15 रोज़ा मैगज़ीन से अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ किया था। मेरी मुराद अंग्रेज़ी रोज़नामा द हिंदू से हाल में रिटायर्ड हुए मुत्तकी मुसलमान जनाब JS इफ्तिखार साहब से इस्तकबाल कीजिए JS इफ्तिखार साहब का। For the last 2 decades and more, KN Wasim has been working together to provide it is a picture perfect snapshot. First as a news photographer and later as an architectural lensman, he has succeeded in capturing everyday life and also architectural heritage of India in different shades. His 2 decades association with Albina, a Riyadh-based architectural magazine, has led to his documentation of medieval Indian architecture known for its exquisite beauty and workmanship. And in the process, he has proved that the instrument is not the camera but the photographer is. Over the years, Mr. Wasim has held many photo exhibitions showcasing the architectural legacy of India in different cities of Saudi Arabia in association with the Indian Embassy, Riyadh and Jeddah Consulate. Mr. Wasim is pursuing his interest without any financial aid from any organization and in the process promoting Indian tourism abroad. His extensive travels have resulted in documentation of over 150 monuments, forts and palaces in all their beauty and splendor. More than 10 short documentaries on Indian historical monuments produced are available on the YouTube. Mr. Wasim, who hails from Hyderabad, has come up with the stunning images of the city's iconic monument Charminar. The most important aspect of these photographs is that they are deeply emotive and seem to communicate with the viewer. No wonder his pictures grab your attention and demand a second look. My association with Mr. Wasim goes back to the 80s when we both landed up in the Indian Express, Hyderabad. As a young reporter, I teamed up with Mr. Wasim and produced many informative and fascinating stories for newspaper. माइक पे आए Domestic career. But over the years, we have both been in touch. An important thing about Mr. Wasim is that he speaks not merely with the shutter, but with the people as well. His large circle of friends here bears this out. As they say, there is the Tasveer ka Gusar, which not many know. He is perhaps the only NRI who is highlighting the issues of facing the expatriates in the Gulf through his weekly columns in the Siyasat Daily for the last quarter century. Apart from being a great chatterbox, Mr. Wasim is also a good Urdu essays. His writings tickle the funny board on no end and rare commission for a photo journalist. Thank you. मैं जनाब रोमान साहब फार्मर उर्दू अकेडमी चेयरमैन से गुजारिश करता हूँ जो स्टेज पर तशरीफ लाएं। I would like to acknowledge the presence of K. Vishwanath Reddy, former film actor and also classmate of KN Wasim Sahab. Thank you for coming, sir. इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज इस बुक के आथर KN वासिफ पर इजहार ख्याल करने के लिए मैं उनके एक फ्रेंड गाइड फिलासफर को जहमत दूंगा। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं। आपने मैदान सहाफ़त में मुल्क और बैरून मुल्क अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आपने 1984 से 1998 तक अंग्रेज़ी रोज़नामा सऊदी गज़िट में खिदमत अंजाम दी, जहां से मैनेजिंग एडिटर के ओहदे से रिटायर्ड होकर वतन वापस आए। अब भी पेशे सहाफ़त से जुड़े हैं। मेरी मुराद जनाब अय्यूब अली खान साहब से है। हज़रात इस्तकबाल कीजिए अय्यूब अली खान साहब का। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोस्त KN वासिफ ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो हमारे लिए बहुत से इफ्तिखार है। इतनी खूबसूरत किताब, इतने अच्छे तस्वीर, ये उनके 30 साल बल्कि उससे ज़्यादा सालों के सफ़र का नतीजा है और निचोड़ है। मैं वासिफ से बहुत ज़माने से वाकिफ़ हूँ और
हम जब सऊदी अरब में थे तब ज़्यादा हम लोगों का मिलना जुलना होता था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सऊदी अरब में। वो NRIs जिन्होंने न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि हैदराबाद और हिंदुस्तान के लिए काम किया, मैं उनमें वासिफ को सर-ए-फ़हरिस्त लोगों में शुमार करता हूँ। वासिफ जो वहाँ से रेगुलर कॉलम लिखते हैं सियासत के लिए, वो काबिल-ए-दीद है, पढ़ने के लायक है और उससे हमको असबाब मिलते हैं सीखने के लिए। I was fortunate to be in Saudi Arabia from 80-81 onwards up to 1998, and after returning from there, my professional life continued, and I worked with the Deccan Chronicle as the bureau chief, and also with Times of India as special editor. दोस्तों, इन तमाम अरसे में मुझे खुद वापस होकर तकरीबन 25 साल हो गए। 98 में मैं वापस आया, मगर ये उन चंद लोगों में से हैं वासिफ जिनसे मेरा राब्ता कायम रहा। उसकी वजह बिरादना ताल्लुकात होना एक अलहदा बात है, मगर वो उनका जो काम होता था उस पर मेरी नज़र होती थी। मैं एक दो बातें आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा जो काबिल ज़िक्र हैं और जिनको बार बार दोहराने की ज़रूरत है। एक बात तो आप नोट फरमाएं कि आप जो गल्फ जाने वाले NRIs थे या हैं, उनका ज़माना ख़त्म होके 20 साल हो गया। अब तेलुगु लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं अमेरिका की तरफ, उनका ज़माना है। कभी आप नामपल्ली पुलिस स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन जाते तो पुलिस स्टेशन से लेकर रामपल्ली रेलवे स्टेशन तक गहमा गहमी रहती थी लोगों को भेजने के लिए। आज आप जाइए, कोई किसी को भेजने के लिए रेलवे स्टेशन नहीं जाता। एयरपोर्ट पर भी लोग दिखाई नहीं देते, रिसीव करने के लिए भी अब लोग आना कम हो गए। This is an indication that the importance of NRIs has diminished. Why? There are two reasons. One is the NRIs when they were in Riyadh, Jeddah, Dammam or any other Gulf country, they did not try to build up a base in Telangana. आना, तस्वीरें खिंचवाना, लोगों से मिलना और वापस चले जाना, ये हमारा काम रहा है। हमने यहाँ पे कोई मुस्तक़िलन काम नहीं किया। मैं जब वापस आ रहा था तो हम लोगों ने एक तंजीम बनाई थी, आंध्र प्रदेश NRIs एसोसिएशन। वो तंजीम चूँकि उसमें जो साहब थे, चलाने वाले थे, उनको भी तस्वीरों का शौक़ था, काम करने का शौक़ नहीं था। वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद मर गई। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसके नाम पे आप एक जगह जमा हो सके या बात कर सकें। मुझे इस बात का अफसोस है कि वासिफ जैसे फोटोग्राफर के नाम पर भी ये हाल मुकम्मल तौर पर नहीं बढ़ सका। आप बताइए, क्या हम कदर करते हैं हमारे NRIs की? मेरा ज़्यादा ख्याल है कि हम इनकी कदर नहीं करते, हम इनको नहीं मानते कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। हम समझते हैं कि जो मिलना था मनसबात मिल गया और बस काफ़ी है उसके लिए। दूसरी बात, जो प्राइवेट एफर्ट्स के ज़रिए की जा सकती थी, वो भी NRIs ने नहीं की और न उस दर्जे पे पहुंच सके। आप मुझे बताइए, वासिफ की तरह के कितने NRIs को शहर हैदराबाद ने ऑनर किया है? मुझे तो एक भी नाम याद नहीं है दोस्त। महफिलों में बैठना, महफिलों में गुफ्तगू करना बड़ी अच्छी बात है, चाय पीना, खाना खाना, चले जाना। But what about them who left their families and worked hard in the deserts and the heat of the desert for years and years? Have you ever given them any respect? No sir. अफसोस की बात यह है कि हम हैदराबादियों के नाम पर धब्बा है।
मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, चूँकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। अगर मैं वापस आके अपने आप को दोबारा नहीं मनवाता दक्कन क्रॉनिकल और टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए और अब siyaasat.com के जरिए, कोई मुझे याद करने वाला नहीं होता। ये हम सब के साथ हो रहा है, इसका ख्याल रखिए, ऐसा मत होने दीजिए। हमारे लिए जिन लोगों ने काम किया, आपके लिए काम नहीं किया होगा मगर आप ही का हिस्सा है। अपनी फैमिली की अगर वहाँ जाके हेल्प कर रहे हैं तो वो आपकी भी मदद कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में और फार्मासिटी में पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि वो लोग वहाँ पे मेहनत करके कमा रहे हैं और भेज रहे हैं यहाँ अपने लोगों के लिए पैसा, और हम यहाँ पे ऐशो इशरत में। दोस्तों, मेरे दोस्त वासिफ काबिल फ़ख्र हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उस ज़माने भी उनकी बड़ी अहमियत होती थी और आज भी अहमियत है। एक साहब ने कहा कि इंडियन एम्बेसी के तवस्सुत से वो प्रोग्राम करवाते थे। मैं इस बात की वो करना चाहूँगा, रिजेक्ट करना चाहूँगा। वासिफ की मदद करने के लिए इंडियन एम्बेसी रास्ते तलाश करती थी उनके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वासिफ का नाम तमाम हिंदुस्तानियों में जाना जाता था एहतराम से। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंडियन एम्बेसी ने मदद नहीं की, वासिफ ने इंडियन एम्बेसी और इंडियन डायस्पोरा की मदद की है। वासिफ ने अपना नाम बनाकर हम हैदराबादियों की और तमाम हिंदुस्तानियों को का सर फख्र से बुलंद किया है। हम वासिफ के लिए जितना भी तारीफ करें, तौसीफ करें, ऑनर करें कम है। मैं वासिफ आपको फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ और उन लोगों को एक बार फिर बोलना चाहता हूँ आपसे कि प्लीज़ आपके लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं लड़के, उन लड़कों की तादाद कम हो गई। जब मैं 1998 में वापस आया तो हमारे 30 लाख Indians, and out of them about 30 to 40% Hyderabadis were in Saudi Arabia alone. और आज हमारी तादाद घट के 20 लाख से भी कम हो गई है, 18 लाख हो गई है। अब हमारे लिए गुंजाइश नहीं है गल्फ में, अब हमको दूसरे रास्ते तलाश करने हैं, दूसरे मकामात ढूंढने हैं। क्या उसके लिए कोशिश है? क्या उसके लिए कोई प्लान है? क्या हमारे माँ बाप या हमारे जो दानिश्वर हैं इस मौजू पर सोच रहे हैं? मैं माजरत के साथ आप सामने कहना चाहूँगा कि नहीं, हम नहीं सोच रहे हैं। हम खुद इंडिविजुअलिज्म का शिकार हैं। हम सिर्फ अपनी देखभाल करना चाहिए, हम किसी और के बारे में नहीं सोचते। सो प्लीज वेक अप एंड हेल्प योर पीपल टू गो आउट ऑफ दिस कंट्री और इन दिस कंट्री, help them to stand on their feet and help their families. Thank you very much. Wasif, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब। मैं अब जेल वासिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे जो मेहमान इज़ाफ़ी तशरीफ़ लाए हैं उनका फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले मुज़फ़्फ़र हुसैन अंसारी साहब, नईम साहब, अफसर खान साहब, नोमान साहब, अयूब अली खान साहब, विश्वेंद्र रेड्डी, film actor and a classmate of K.L. Wasif sahab. They are meeting after a long time. मैं आज के नौशाद K.L. वासिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। इंजीनियर एम.ए. नईम साहब, डायरेक्टर मसा स्पेशलाइज्ड कंसल्टिंग कंपनी, मिस्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन अंसारी, फार्मर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैनेजर, किंग फैसल फाउंडेशन, जनाब अफसर खान साहब, डायरेक्टर विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल औरंगाबाद,
Mr. Abdul Hamid Sahab, Project Director, former Project Director, Riyadh Development Authority, Mr. Ziaur Rahman, CEO, Zitco Super Companies, and also I recognize the presence of Vishwendra Reddy and all my friends whom I am seeing after 30 years, 33 years. So I am very happy that Aziz Sahab यहाँ बैठे हैं और रेड्डी साहब वहाँ बैठे हैं और बहरहाल इतने पुराने नसीर साहब आए हैं, तो इतने पुराने लोग हैं जिनको मैं 30 साल से नहीं देखा, वो इस प्रोग्राम में मौजूद है. So ladies and gentlemen, I feel it an honor. My coffee table book, Indian Architecture and Heritage, is being released under the patronage of Majme Urdu Toastmasters Club. I am thankful to Janab Muhammad Mahmood Ali Sahab, Honorable Minister, who agreed to launch this book. I am grateful to Engineer Abdul Naeem Sahab, Managing Director, Masa Specialized Construction Company, with whose help and support I could print this book. I must also recognize the support of Mr. Muzaffar Hussain Ansari, who always extends his helping hand in my every project. Ladies and gentlemen, the journey of this project, Indian Architectural Heritage, began with the inspiration given by the then Ambassador of Saudi Arabia, Mr. Hamid Ansari. Now he retired as the Vice President of India. He is always, way back in 1998, my journey is still going on, as consider this book is the end of the first phase of my journey in the discovering India. This book is the essence of my life, my love and my passion of photography, which consists of 140 pages, almost all the famous medieval architecture buildings in India. Inshallah, I will come out with the second edition soon, with a edition of new monuments in this book. The aim of this project is to let the people know about the treasure of India in the shape of historical monuments and to boost the Indian tourism. Lastly, I want to tell my friends present here that the book is printed in hurry and digital printing process. Presently, very limited copies are available with me, due to which I cannot offer copies to all of you who came all the way to this ceremony. Please drop your business card or your contact and name. Outside there is a table for it. We will, in a day or two, we will inform you how to take this book. Thank you very much. मैं अंग्रेजी और उर्दू दोनों का खाता हूँ, लिहाजा नमक हलाली का तकाजा है कि मैं दोनों ज़बानों में बोलूँ. मेरी पहली किताब उर्दू में आई थी, मगर दूसरी किताब की कोई ज़बान नहीं है, मगर ये किताब गूंगी भी नहीं है. इस किताब को पढ़ने के लिए कारी का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है. इस किताब में 35 तारीखी इमारतों के सैकड़ों तस्वीरें हैं, जिसका नाम इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज है. इस काम को मैंने बहैसियत प्रोजेक्ट 1998 में शुरू किया था. इस प्रोजेक्ट पर काम करने की तहरीक मुझे उस वक्त के सफ़ीर इज़्ज़त माब हामिद अंसारी साहब से मिली, जो बाद को नायब सदर जमहूरिया में हुए. इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने और इसको किताबी शक्ल में आप तक पहुँचाने में मेरे बहुत से अहबाब व करम फरमाओं का ताउन रहा, जिसकी फहरिस्त तवील है, मगर मैं यहाँ चंद नाम ज़रूर लूँगा, जैसे डॉक्टर औसाफ सईद, इंजीनियर नईम साहब, जनाब मुजफ्फर हुसैन अंसारी साहब और मिर्ज़ा ज़हीर देव साहब. हज़रात, मेरी 40 साल से ज़्यादा की सहाफ़ती ज़िंदगी में ये पहला मौका है जब मैं हैदराबाद में किसी तकरीब में हर हैज़ीर के साथ की बजाय स्टेज पर बैठा हूँ. मैंने यहाँ बरसों मुखर्रीन को सुना है, आज कुछ सुना रहा, बल्कि सुना चुका, बहुत कुछ सुना चुका. लिहाजा अपनी बात ख़त्म करते हुए मैं मेहमान ख़ुसूसी, मेहमानान एज़ाज़ी और तमाम ख़वातीन और हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह. बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ भाई. I kindly request our guest of honor, Engineer M.A. Naeem साहब, to say a few words. वासिफ साहब जो
पूरी कंपनी जो है पूरी मेहनत से जो प्रिंट करे वो बुक बिल्कुल देखने के लायक है और गार्डनरी बुक नहीं है, तो वो हमारे मुसलमानों के लिए और इंडियन हेरिटेज के लिए बहुत कीमती तोहफा है. यू वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट वन. दैट्स व्हाई कभी भी मैं हमेशा वासिफ साहब को बुक के साथ में अटैच है. He made so many exhibitions, he made proud to us in a lot of locations. But the same thing, another way, as our minister, Home Minister, he passed the message to everybody. We have to work hard. His life is not for only to pass the time. As this book before maybe 600 years, 1000 years, the people they work hard, and now today we are remembering for that one. उसको हम आज जो है उसको असासा समझ के देख रहे बार बार. तो हम क्या कर रहे हैं ये कंट्री में, हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं. यहाँ से जाने से पहले हर कोई ये इरादा करके जाए कि भाई आई विल डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली, माई सिटी एंड माई कंट्री. हम यहाँ पे पैदा हुए और यही है और हम मरेंगे भी तो हम हिंदुस्तान में. तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं. 1600 साल पहले या 600 साल पहले की चीज़ों को देख के हम खुश हो रहे हैं, लेकिन आगे 100-200 साल पहले लोग आगे जब हम चले जाएंगे तो हमको देख के याद करने के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं. तो ये जो उम्र या जो लाइफ दी गई है, इट्स नॉट फॉर जस्ट टू पास द टाइम या रातों में जगह हम हमारे पास निज़ाम बनाए और हर कोई ये इरादा करके जाए कि आई विल डू समथिंग फॉर माई कंट्री, फॉर माई सेल्फ, एंड वी हैव टू फॉलो इवन लाइक केयर. एटलीस्ट उन्होंने हमको एक बुक तो दिए हुए, चाहे वो जमा करके, तो आगे हम जो है इसको एक इंस्पिरेशन लेके जाने के वी विल डू समथिंग. ताकि मैं अपनी बात खत्म कर दूँ. बहुत बहुत शुक्रिया साहब. I kindly request our another respectable guest of honor, Hasan Khan साहब to address the gathering. इस जलसे के सदर, इस जलसे के नौशाद जनाब के.एन. वासिफ साहब, डाइस पे बैठे हुए डिग्नेटरीज, ख़वातीन हज़रात, मैं एक अंग्रेज़ी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मैं अंग्रेज़ी स्कूल का प्रिंसिपल 1980 से हूँ, लेकिन आज मैं आपसे अंग्रेज़ी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ. और मैं मिनिस्टर साहब जो यहाँ से तकरीर करके गए हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने भी उर्दू ज़बान सेलेक्ट की, मुकर्रर की और उसके बाद आपसे मुखातिब हुए. के.एन. वासिफ साहब से मेरा देरीना ताल्लुक़ है. उनका एक मैसेज मुझे औरंगाबाद में मिला था कि मैं हैदराबाद आ गया हूँ और हैदराबाद का मेरा ये नंबर है. उसके बाद जो है रस्मी बात उनसे होती रही, लेकिन कुछ दिन पहले उनका एक मैसेज आया कि साहब मेरी किताब का जो है इजरा है, क्या आप औरंगाबाद से तशरीफ़ लाएंगे. मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, मैंने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ. तो आज हिंदुस्तान की तामीराती विरसे की किताब, इसका ट्रांसलेशन ये होता है हिंदुस्तान की तामीराती विरसा, तो इस किताब का इजरा हुआ है और इसके बाद ये शानदार किताब है. मैं आपको के.एन. वासिफ साहब के ताल्लुक़ से बता दूँ कि 1987 में जब मैं इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद का प्रिंसिपल बना तो मैं वहाँ अकेला था. मैं ओमान से आया था, वहाँ पर भी मैं इंडियन स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन वहाँ से जब मैं रियाद आया था तो किसी को जानता नहीं था. लेकिन यूँ समझिए कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, और इन लोगों में के.एन. वासिफ साहब भी शामिल हैं. इसलिए कि के.एन. वासिफ साहब, मरहूम सनाए साहब, मरहूम वहाब साहब, उसके अलावा सिकंदर अली साहब, इंजीनियर सलीम साहब, और ये हैदराबादी ग्रुप था जो
जो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करता था, मेरी हिम्मत अफजाई करता था, और इनकी हिम्मत अफजाई की वजह से मैंने जो है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद में 14 साल तक प्रिंसिपलशिप की, और उसके बाद जो है मुश्किलात आती गई, उनकी कमेटी होती थी, तो मैं उन दुखड़ों को आपके सामने नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वहाँ के जो खुशगवार लम्हात थे उनमें जो है के.एन. वासिफ साहब की मौजूदगी भी होती थी। कई फंक्शंस हमने साथ किए, लेकिन मैं ऐसा डाइस में बैठा होता था और उसके बाद के.एन. वासिफ साहब को ढूंढता था कि के.एन. वासिफ साहब कहाँ हैं, तो के.एन. वासिफ साहब कहीं ना कहीं मुझे नज़र आते थे। इनकी मिसाल उस प्लेबैक सिंगर की तरह है जो अपनी आवाज़ तो देता है लेकिन ये पसे पर्दा होता है। तो इस किताब में जो है ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये के.एन. वासिफ साहब की जो है प्लेबैक सिंगर की तरह है। ये इस किताब के मोहम्मद रफ़ी है जो हमेशा याद रखे जाएंगे। मैं जो है के.एन. वासिफ साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदद किया और मुझे चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब। मैं आज के महफिल के सदर जनाब मुजफ्फर हुसैन अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने सदारती कलमात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना कुछ सुन सका हूँ कि और कुछ बात नहीं रही। वासिफ साहब से मैं तकरीबन 27 साल से रियाद में मेरी सर्विस के दौरान आपसे एक बार मुलाकात हुई थी, तो मेरे किंग फैसल फाउंडेशन की बिल्डिंग के सामने आप आए और आपकी क्रिएटिविटी ये थी कि उन्होंने उसके अक्स में नया टावर हमारा जो बना फैसलिया उसको और होटल को उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर दिया और वो जो तस्वीर बनाई और उसको भेजा उन्होंने, तो मैंने वो हमारे तमाम रॉयल फैमिलीज़ में सर्कुलेट किया कि ये है, तो काफ़ी सराहा गया उसको। मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि इसको आप जो है सारे दुनिया के एयरपोर्ट के बुक स्टॉल पे रखा दें। उसके लिए जो भी होता है और की ये तमाम NRIs ये जो भी आएंगे टूरिस्ट वो देखेंगे और ये हमारे मुस्लिम रूलर्स उन्होंने ऐसे आर्किटेक्चरल हेरिटेज बिल्डिंग्स को बनाया और जिसको जाहिर किया एक बहुत ही क्रिएटिव जर्नलिस्ट है, उसको जो है बिकना चाहिए, मिलना चाहिए हर इसके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तशहीर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ बहैसियत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडेशन में हमेशा जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी आते थे बैंक्स वो लोग रूल करते थे उनके पोर्टफोलियो। जब उन्होंने मुझे इंगेज किया तो उसके बाद और जब मैं 27 साल के बाद छोड़ा तो उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो इजाफा हुआ वो आज तक मेरे पास उसके मेडल्स मौजूद हैं जो वो प्राइज विनर्स को जो अवार्ड देते थे वो अवार्ड से मुझे नवाजा के एम्प्लॉइज ऑफ दी क्वार्टर सेंचुरी फॉर द किंग फैसल फाउंडेशन। उसमें मैंने ये महसूस किया कि हैदराबादियों का अमंग इंडियंस बहुत बड़ा काम है उन लोगों में। पहले वो लोग उसको इस तरीके से पुकारते थे कि कोई इज्जत नहीं होती थी, अब बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं कि ये लोग बहुत प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी शोबे से आए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई और शोबे से ताल्लुक़ है, दे आर एक्सपर्ट्स। यू नो इतने पैसे वहाँ फॉरेन बैंक्स में देने के बजाय इन लोगों को लगाओ, एम्प्लॉय करो
they will deliver you a better things. तो उस तरीके से हमने उनके एसेट्स को मल्टीप्लाई किया. अब मेरा टारगेट बाद में जो हुआ तो ये हुआ कि हैदराबाद को सऊदी अरब में ऐसा पेश किया जाए कि इन्वेस्टमेंट के पूरे जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं सऊदी अरब में उनको बुलाया जाए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी अभी आपने नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज. उन लोगों को बुला के मैंने लड़कियों जेंट्स के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल स्कीम्स बनवा के उनको पेश किए कंसल्टेंसी के पूरे, ताकि ये लोग आके सेटअप करें. और वही हुआ और इतना कामयाब हुआ मिशन अफिटको का कि अफिटको वालों ने हमारे फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल असिस्टेंट और मेरे को इनवाइट करें और बहुत बड़ा एग्जीबिशन क्लब में एक प्रेजेंटेशन हुआ. उसको उन्होंने बताया कि इतने इंडस्ट्रीज हैं जो सिख हैं और हमने देखे हैं जो सऊदी अरब में. हमारे पास के एक्सपर्ट वहाँ जाके उसको इनवाइट कर और उसमें से बहुत से इंडस्ट्रीज किए हैं, अभी तक चल रहे हैं. एक इंडस्ट्री का मैं नाम नहीं लूँगा मगर बताऊँगा ज़रूर कि वो अपने लोगों से ताल्लुक़ है जो बनाते हैं ऐसा केबल और पाइपलाइंस जिससे ऑयल सप्लाई होता है. वो हैदराबादी साहब, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा काम है. तो आज ज़रूरत जो है वो अफिटको बन के अब तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी. मैं अपने मुअज़्ज़िज़ महमूद अली साहब से ये अर्ज़ किया कि भाई आप कुछ ऐसा बनाइए, एक कंसल्टेंसी गाइडेंस ब्यूरो इस्टेब्लिश कीजिए जो बच्चों के लिए जो यंग हैं जो जा रहे हैं कि वो लोग क्या करें, आने के बाद क्या करें. थोड़ा सा एक 10% 20% इन्वेस्टमेंट एज ए कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट के तरह, कोई एक अकेला इन्वेस्ट करके आगे नहीं बढ़ सकता. तो ऐसा इस सिलसिले में एक पहल हुई थी. तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट गाइडेंस ब्यूरो की इब्तिदा की उसकी हमको सपोर्ट मिली मुज़फ़्फ़र व्यास साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया. मैं ये चाहता हूँ कि हम इनसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग भी और खुसूसन अय्यूब खान साहब जो है इतना कुछ कह चुके हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर ये बात ज़रूर है कि आप एक कोशिश करें कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन NRIs जो हैदराबाद में हो और रियाद में भी हो और सऊदी अरब के बड़े बड़े शहर, न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मिडल ईस्ट में, UAE में, कतर में, जहाँ भी होता है वहाँ पर इसको बढ़ाया जाए, गाइडेंस किया जाए. बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, इंजीनियर्स हैं, क्यों ना करें. क्या घर बनाना ये सब कुछ नहीं है, हमको एक रनिंग इनकम भी करना है यहाँ पर. वरना जो लाया सारा सरमाया वो थोड़े दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ तो कोई जॉब देगा नहीं. तो ये चीज़ के सोचना चाहिए. तो इस ज़िमन में मेरी बस एक ही दरख्वास्त है, आप इसको आगे बढ़ाएं. पहले तो आपकी सरकार को जो आप ये बता दें कि इसको मिटाने से एक इसमें तस्वीर इसको मिटाना. This once, yes, government has changed. Tourist to the government of India. The government of India should make you Pravasi Bharati Award. Please face to the mic. We are all in support that, and we will try to send to the ministry as ambassador special. हिंदुस्तान की तारीफ जो है बना नहीं होने दे रहे. हम लोग मेरे बड़े ज़्यादा
Please face to the audience. औरंगाबाद से लेके हैदराबाद तक इस तरह हिंदी का ड्रेस मुझे ऐसे ट्रैवलिंग और ऐसी जगह है रियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कि कोई इस तरफ से बहुत बताया हमने ऐसे में आज ये है मेरा तो बस इतना ही मुख्तसर कहना है लड़कियों के साथ और हमारे लिए एक ही नारा है जन जमीन और जेवर, एक जन जमीन और जेवर। एक शख्स को अपनी वाइफ को कष्ट होता हो तो मेरी बेटा आप बोलिए बेटा फुल जिनकी सपोर्ट से वो बैठी है आज मैं इस मुकाम पर मेरिट के लिए सीधा है मगर उनको बराबर करना चाहिए। मैंने जमीन का नाम इसलिए लिया उससे सवाल किया गया कि इन शॉर्ट आप बताइए कि कहाँ इन्वेस्ट करें। मैंने कहा बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड इज अर्थ इटसेल्फ, ऑन अर्थ इज अर्थ इटसेल्फ। जमीन पे कीजिए इन्वेस्ट, जिसको आप कोई आपको हटा नहीं सकता। आप वो खरीदिए उससे निकालिए, चाहे एग्रीकल्चर करो। और एक टर्मिनोलॉजी चल रही है इधर से कि पोल्ट्री, फिशरी एंड गोटरी। आप क्या समझेंगे? तीन, गोटरी, पोल्ट्री, फिशरी, ये सब चीज़ें ज़मीन पे चलती। और शहर के अतराफ जितना भी लैंड है वो आप एक्वायर करें मकानात के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ऐसे स्टेप्स के लिए कि किचन गार्डन्स, किचन ये पूरी अपनी सप्लाई आप कर सकते। एक ज़माने में हैदराबाद के अतराफ पूरे अंगूर के बागात होते थे, वो सब ख़त्म हो गए, मार्केट इतनी नहीं रही। वो जाके अब पूरे मैंगो के जो ज़्यादा इसका ज़्यादा वैल्यू है। मगर फिर भी क्या है, हमारे लोग इससे हटते जाते हैं, ज़मीन आपको बेच दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, किसी भी तकरीब के खुशगवार अख्ताम हदीयत तशक्कुर पर होता है। इस फरीज़े को अदायगी के लिए हमारी तंजीम बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब के बानी रुकन सहाफ़ी व खुशनवीस जनाब गौस अरसलान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हदीयत तशक्कुर पेश करें। जनाब गौस अरसलान साहब। तशक्कुर के खुशगवार फरीज़े की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। टोस्ट मास्टर्स क्लब की जानिब से मैं महमूद अली साहब, इज़्ज़तमान वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना, इंजीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर मसा स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी, डॉक्टर शहाब अख्तर खान साहब माहिर तालीम वो डायरेक्टर रजिस्टर्ड इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद, जनाब सैयद ज़ियाउर रहमान साहब के अलावा जे वासिफ साहब के बेहना रुफ़ायकार, जनाब अयूब अली खान साहब, जनाब JS इफ्तिखार साहब के अलावा वासिफ साहब के चाहने वालों और उनकी मोहब्बत में यहाँ
تشریف لائے اور حاضرین میں جو مجھے نظر آ رہے ہیں جناب رؤف خیر صاحب، جناب محمد خیسر صاحب، انتصار رضوی صاحب، ڈاکٹر سید مصطفیٰ قمر صاحب، انجینئر شگوفہ، انجینئر عزیز صاحب، وشویندر ریڈی صاحب اور انجینئر عزیز صاحب، اور ان کے علاوہ سامنے جو ہے ہمارے ممتاز مصور اور خوش نویس جناب محمد رفیع الدین صاحب، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.